Assalamu alaikum, all of you. Hope you all are doing well. Eid Mubarak. And we'll be starting class from the point where we left. तो हम वहीं से start करेंगे इंशाल्लाह जहाँ हमने last time छोड़ा था. और if you remember हम devoted friend पढ़ रहे थे. We are about to end it और अभी class हम इसको end करने जा रहे हैं. ठीक है? So hopefully you won't get any confusion in it. ठीक है? Wait for a while until all the participants join us. ठीक है? We have got 10 participants right now. We are supposed to wait for a while and then we'll continue with the same as we left. Have you got your physics class? आपकी physics की class की timing मेरा ख्याल है आज schedule change हुआ है आपका थोड़ा सा और it will remain the same. ठीक है? अब यही schedule follow होगा till the end of August. तो you have to follow the same schedule. ठीक है? और जो स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं या जिनको कम्युनिकेट नहीं हुआ उनको भी बता दें वैसे ग्रुप में टाइम टेबल शेयर हो चुका है. ओके so follow the timetable and take your classes accordingly. So let's start. हम अपनी क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमने जो लास्ट टाइम पार्ट पढ़ा था if you remember ये वाला वो पार्ट था जहां उसका बेटा कह रहा था कि क्यों ना हम हैंस को अपने घर बुला लें और मैं उससे अपना खाना शेयर करूंगा और मैं उसे अपने वाइट रैबिट दिखाऊंगा. What happened after that? Listen to it and then we'll talk about. ठीक है? Give me a minute. मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. ठीक है? Okay, जनाब. Have you got the screen? So I'm starting from the point where we left और देखते हैं कि what happened next. Ho, ho, ho! What a silly boy you are, cried the miller. I really don't know what is the use of sending you to school. You seem not to learn anything. Why, if little Hans came up here and saw our warm fire and our good supper and our great cask of red wine, he might get envious. And envy is a most terrible thing and would spoil anybody's nature. I will certainly not allow Hans's nature to be spoiled. I am his best friend, and I will always watch over him and see that he is not led into any temptations. Besides, if Hans came here, he might ask me to let him have some flour on credit, and that I could not do. Flour is one thing, and friendship is another, and they should not be confused. Why, the words are spelled differently and mean quite different things. Everybody can see that. How well you talk, said the miller's wife, pouring herself out a large glass of warm ale. Really, I feel quite drowsy. It's just like being in church. Lots of people act well, answered the miller, but very few people talk well, which shows that talking is much the more difficult thing of the two, and much the finer thing also. And he looked sternly across the table at his little son, who felt so ashamed of himself that he hung his head down and grew quite scarlet and began to cry into his tea.
However, he was so young that you must excuse him. Okay, Janab. Have you heard that part? Remember, it was just a little bit recall, ना? तो ये पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. It was just a recall कि हमने लास्ट टाइम कहाँ छोड़ा था, ताकि आपको सेंस क्लियर हो जाए. रिदा, अपना कनेक्शन चेक करो. कनेक्शन चेक करें जरा. अपना इंटरनेट कनेक्शन काइंडली चेक करें. मेरे पास क्लियर आ रहा है बिल्कुल ना, आवाज भी क्लियर है और वो भी ना. बाकी लोग अपना इंटरनेट कनेक्शन जरा चेक कर लें. मैं एक बार फिर से. ओके ओके, अब क्लियर है. ठीक है ठीक है. तो लेट्स सी, दिस वाज द पार्ट के जब उसका बेटा उससे कहता है कि मैं, आप उसे अपने घर बुला ले और मैं उससे अपनी चीजें शेयर करूंगा, अपना खाना शेयर कर लूंगा, उसे अपने व्हाइट रैबिट दिखाऊंगा. तो वो उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें स्कूल भेजने का कोई फायदा नहीं है, तुम स्कूल में क्या सीख रहे हो. और फिर उसकी वाइफ कहती है, वाइफ भी उसकी सपोर्ट में बात कर रही होती है, और वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं चर्च में बैठी हुई हूँ और तुम कितनी अच्छी बातें करते हो. तो इस पर वो ये वाला जो कोटेशन है, ये जरा सुनिएगा. ये बड़ा अहम कोटेशन है. Lots of people act well, but very few people talk well. ऐसे ही है, आप अग्री करते हैं इस बात से? Lots of people act well, but very few people talk well. Can someone comment on this? आपका भी यही ख्याल है? Lots of people act well. बहुत सारे लोग अच्छे काम तो करते हैं, but very few people talk well. लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छी बात करते हैं. Is that so? Do you agree with the idea? आप इस बात से अग्री करेंगे? Lots of people act well, but very few. उल्टा है इससे. अच्छा नहीं है. अच्छी बातें सब करते हैं और अच्छे काम कोई नहीं करता, ये कहना चाह रही हैं? ऐसा ही है? या फिर सारे लोग अच्छे काम करते हैं और अच्छी बात कोई नहीं करता? Very few act well and lots of talk well. Yes, इफ्रा, इसका ऑपोजिट है. यस, ऑपोजिट है. और इस वक्त अगर आप मिलर की कैफियत भी देखें तो मिलर भी तो यही कर रहा है. रियलाइज करें जरा, है ना? मिलर भी अभी तक सिर्फ बातें ही कर रहा है, जबकि उस अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ये मुहावरा अगर देखें, दोस्त वो है जो जरूरत में काम आए. तो उसको तो मिलर की हैंड्स की हेल्प करनी चाहिए कि वो बेचारा भूखा सो जाता है सर्दी के अंदर दिनों में, सर्दी के दिनों में जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता. नाउ which shows that talking is much more difficult. और वो ये कह रहा है कि टॉकिंग, बात करना बहुत ज्यादा मुश्किल है. खैर, however, अब वो बेचारा जो बेटा था उसका, वो बेचारा इतना ashamed फील करता है अपने आप को, और वो कहता है शायद मैंने कोई गलत काम कर दिया. वो अपना सर टेबल पर रखकर खामोशी से बैठ जाता है और उसका चेहरा लाल हो गया. स्कारलेट, लाल हो गया उसका चेहरा. एंड बिगिन टू क्राई, और ऐसा लगता है कि वो अभी रोना ही शुरू कर देगा, जबकि वो बहुत ही छोटा था. यू मस्ट एक्सक्यूज हिम. इज दैट द एंड ऑफ द स्टोरी? आस्क्ड द वाटर रैट. वाटर रैट पूछ रहा है क्या स्टोरी खत्म हो गई? तो ग्रीन लिनन कहता है नहीं नहीं, ये तो अभी शुरू हुई है. कहानी तो अभी शुरू हुई है, स्टोरी तो अभी शुरू हुई है, अभी खत्म नहीं हुई स्टोरी, तो अभी शुरू हुई है. तो let's see what happens next. Listen. Is that the end of the story? Asked the water rat. Certainly not, answered the linnet. That is the beginning. Then you are quite behind the age, said the water rat. Every good storyteller nowadays starts with the end, then goes on to the beginning, and concludes with the middle. That is the new method. I heard all about it the other day from a critic who was walking around the pond with a young man. He spoke of the matter at great length, and I'm sure that he must have been right, for he had blue spectacles and a bald head, and whenever the young man made any remark, he always answered, "Pooh!" But pray go on with your story. I like the miller immensely. I have all kinds of beautiful sentiments myself, so there is a great sympathy between us. जी जनाब, क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्या स्टोरी खत्म हो गई है? लेनिन कहता है नहीं नहीं, ये तो कहानी शुरू हुई है. कहता है फिर तो तुम अपनी एज से बहुत पीछे चल रहे हो. वाटर रैट कहता है जो भी अच्छा कहानी लिखने वाला, कहानी बोलने वाला, सुनाने वाला होता है, वो एंड से स्टार्ट करता है और फिर बिगिनिंग पर आता है और दरमियान में कंक्लूड करता है. ये नई मेथोडोलॉजी है.
इसके बारे में मैंने सुना था जब मैंने 2 लोगों को बात करते हुए सुना था, और उसने बहुत डिटेल में ये बात बताई, और मुझे पता है कि ये बिल्कुल ठीक है। और उसके साथ जो शख्स था जिसने नीले कलर के ग्लासेस पहने हुए थे और जो गंजा था, बाल्ड हेड गंजा था, और जब कभी भी यंग मैन कुछ कहता तो ही ऑलवेज आंसर्ड फू, तो वो सिर्फ फू करता। बट प्रे गो ऑन विद योर स्टोरी। चलो खैर तुम्हारी कहानी सुनते हैं। आई लाइक मिलर इमेंसली, कह रहा है मुझे मिलर का कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद आया, और मेरी सारी की सारी सेंटिमेंट, सारी की सारी दुआएं, सारी की सारी अच्छाइयां किसके साथ हैं? मिलर के साथ हैं, क्योंकि देयर इज अ ग्रेट सिंपैथी बिटवीन अस, क्योंकि मुझ में और मिलर में बहुत कुछ कॉमन है। तो आई लाइक द मिलर कैरेक्टर इमेंसली। कौन कह रहा है? वाटर रैट कह रहा है। डू यू अग्री विद द सेम? आपको भी मिलर का कैरेक्टर अच्छा लगा है? डिड यू लाइक द सेम? मिलर का कैरेक्टर ज्यादा अच्छा है? What do you think? आप क्या कहते हैं? Did you like the Miller's character immensely? नहीं. Act well, so and so many just talk well. Yes, okay. You did not like Miller's character. Okay. Let's move on. देखते हैं कि क्या होने जा रहा है स्टोरी में, आगे क्या होता है. Let's see what happened next. The Devoted Friend by Oscar Wilde, read by Richard Barclay. Okay, जनाब. We had the same audio till now. उसके बाद क्या हुआ? Well, said the linnet, hopping now on one leg and now on the other. As soon as the winter was over and the prime roses began to open their pale yellow stars, the miller said to his wife that he would go down and see little hens. Why, what a good heart you have, cried his wife. You're always thinking of others, and mind you take the big basket with you for the flowers. So the miller tied the sails of the windmill together with a strong iron chain and went down the hill with the basket on his arm. Good morning, little Hans, said the miller. Good morning, said Hans, leaning on his spade and smiling from ear to ear. And how have you been all the winter, said the miller. Well, really, cried Hans. It is very good of you to ask, very good indeed. I'm afraid I had rather a hard time of it. क्या हुआ जनाब? अब कहता है कि दोबारा कहानी शुरू होती है, लिनेट सुनाना शुरू करता है और कहता है आखिरकार क्या हुआ कि सर्दियां खत्म हो गई और दोबारा से बाहर का मौसम आ गया और फूल खिलने लगे और पेल येलो कलर के स्टार्स टाइप के फूल, प्राइम रोजेस जो हैं वो खिलने लगे। अब मिलर ने अपनी वाइफ से कहा कि वो जाएगा और हैंस से मिलेगा। तो मिलर की वाइफ कहती है, ओह तुम्हारा दिल कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा दिल है, तुम दूसरों के बारे में कितना सोचते हो। हाँ, और सुनो सुनो, जाते हुए वो बास्केट जरूर ले जाना फॉर द फ्लावर्स, ताकि तुम फूल ला सको। तो मिलर क्या करता है, अपनी विंड मिल को आयरन चेन से बांधता है और हिल से नीचे उतरता है और बास्केट उसके आर्म में होती है। हैंस के पास आता है, उसे गुड मॉर्निंग करता है। हैंस भी उसे गुड मॉर्निंग करता है और अपना स्पेड, कुदाल, स्पेड जो है वो उसके हाथ में होती है। वो हंसता है, मुस्कुराता है और उसकी मुस्कुराहट एयर टू एयर भरपूर तरीके से मुस्कुराता है जब वो अपने दोस्त को देखता है। और मिलर पूछता है, हाउ हैव यू बीन ऑल द विंटर, तुम्हारी सर्दियां कैसे गुजरी। तो हैंस कहता है, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा ये पूछना, बहुत अच्छा गुजरा, मुझे तो डर था, मुझे आई एम आफ्रेड, मेरा सर्दियों का वक्त अच्छा नहीं गुजरा। आई एम आफ्रेड, आई एम सॉरी, आई हैड अ रादर हार्ड टाइम ऑफ इट, मेरी सर्दियां बहुत मुश्किल से गुजरी। बट नाउ द स्प्रिंग हैज कम, अब जबकि बाहर का मौसम आ चुका है और मैं बहुत खुश हूँ और मेरे फ्लावर्स बहुत खूबसूरत खिल रहे हैं। ऑल द फ्लावर्स आर डूइंग वेल, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बाग में बहुत सारे फ्लावर्स लगे। We often talk to you during the winters, Hans, said the miller.
मिलर कहता है हमने अक्सर और बेशतर सर्दी में तुम्हारी बातें की हैं एंड वंडर्ड हाउ यू आर गेटिंग ऑन, और हम सोच रहे थे कि तुम कैसे गुजर बसर कर रहे हो. दैट वाज काइंड ऑफ यू, सेड हैंस. हैंस कहता है तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है कि तुमने मेरे बारे में इतना सोचा. आई वाज हाफ अफ्रेड यू हैड फॉरगॉटन मी. मुझे तो लगा कि तुम मुझे भूल चुके थे. हैंस, आई एम सरप्राइज्ड एट यू, सेड द मिलर. फ्रेंडशिप नेवर फॉरगेट्स. बड़ी अहम बात है जनाब. फ्रेंडशिप नेवर फॉरगेट्स. दोस्ती कभी भुलाई नहीं जाती. ऐसा ही है. फ्रेंडशिप नेवर फॉरगेट्स. आप मिलर की बातें सुने. वाओ, व्हाट अ ग्रेट कोटेशन इट इज, है ना. फ्रेंडशिप नेवर फॉरगेट्स. आपको अपना कोई दोस्त याद है अभी तक? बचपन का कोई दोस्त जिसको आप अभी तक भूल नहीं पाए हो, है ना. कोई ऐसा दोस्ती भुलाई नहीं जाती. स्कूल फ्रेंड, और जो है वो मॉन्टेसरी फ्रेंड, और बहुत गली मोहल्ले के फ्रेंड, कोई तो ऐसा जिसे आप भूल नहीं पाए. हैंस, आई एम सरप्राइज्ड एट यू. मुझे तुम पर बड़ी हैरानी हो रही है हैंस. दोस्ती कभी भुलाई नहीं जाती. फ्रेंडशिप नेवर फॉरगेट्स. That is the wonderful thing about it. But I'm afraid you don't understand the poetry of life. लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम जिंदगी की शायरी समझते ही नहीं हो. Hence, I'm afraid you don't understand the poetry of life. कहता है मुझे बड़ा अफसोस है कि तुम्हें इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है कि दोस्ती तो कभी भुलाई नहीं जाती. How lovely your prime roses are looking by the by. कहता है तुम्हारे prime roses कितने अच्छे लग रहे हैं. तो हैंस कहता है दे आर सर्टेनली वेरी लवली. हाँ, बहुत खूबसूरत हैं. सेड हैंस, एंड इट इज द मोस्ट लकी थिंग फॉर मी सो दैट आई हैव सो मेनी. और खुशकिस्मती से बेशुमार है मेरे पास, और मैं बहुत खुश हूं मैं कि ये सब हैं. आई एम गोइंग टू ब्रिंग देम इनटू द मार्केट. मैं इन्हें मार्केट लेकर जाऊंगा एंड सेल देम टू द बर्गो मास्टर्स डॉटर. और मैं उसे मेयर की बेटी को बेच दूंगा. बर्गो मास्टर कहते हैं मेयर को, जो सिटी का मेयर होता है उसको बर्गो मास्टर कहते हैं. बर्गो मास्टर्स डॉटर, एंड बाय बैक माय व्हील बैरो एंड विद द मनी. और कहता है कि मैं उससे अपना व्हील बैरो बाय बैक. इस बात को जरा नोटिस कीजिएगा. हैंस कहता है कि मेरे पास बहुत सारे फ्लावर्स उगे. मैं इन फ्लावर्स को मार्केट लेकर जाऊंगा और वहां बेच दूंगा बर्गो मास्टर की डॉटर को, मेयर की डॉटर को. और बाय बैक माय व्हील बैरो. और मैं अपना व्हील बैरो, उस पैसों से मैं अपना व्हील बैरो खरीद लूंगा. क्या खरीद लूंगा? व्हील बैरो खरीद लूंगा. बाय बैक माय व्हील बैरो. कहता है कि मैं अपना व्हील बैरो खरीद लूंगा. तो व्हील बैरो खरीद लूंगा. बाय बैक माय व्हील बैरो. यू डोंट मीन टू से यू हैव सोल्ड इट. व्हाट अ वेरी स्टूपिड थिंग टू डू. कहता है अब ये मत कहना कि तुमने उसे बेच दिया था. कितना बेवकूफाना काम तुमने किया. What a very stupid thing to do. तुमने कितना बेवकूफाना काम किया. बात समझ आई? वो कह रहा है कि मैं अपना व्हील बैरो दोबारा खरीद लूंगा. बाय बैक. अच्छा, ये व्हील बैरो क्या होता है? Anyone has idea what is wheel barrow? कोई आइडिया है what is wheel barrow? जी जी बताइए. What is wheel barrow? चले मैं आपको दिखाता हूँ what is a wheel barrow. Wheel barrow क्या होता है? Look at this. व्हील बैरो ये एक तरह की गाड़ी होती है जिसे हम ट्रॉली कहते हैं, है ना. और ये वहां उसमें यूज होता है. अच्छा, इसमें और जो व्हील बैरो ये बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. आई विल टेल यू. मैं आपको वो डिफरेंस भी क्लियर कर दूंगा. सी दिस. ये देखिएगा, दिस इज द व्हील बैरो. ठीक है. अच्छा, इस व्हील बैरो में और ये जो यहाँ बात हो रही है उसमें सिर्फ फर्क इतना है कि ये जो व्हील बैरो की बात हो रही है उसमें यहाँ ऊपर ना तख्ता लगा होता है, सीधा तख्ता लगा हुआ होता है सीधा. यहाँ खैर यहाँ इस तरह आ रहा है व्हील बैरो, वरना पुराने दौर में जो है वो इस तरह का व्हील बैरो होता था. इस पे तख्ता लगा होता था, प्लैंक लगा होता था, प्लैंक ऑफ वुड लगा होता था, लकड़ी का एक तख्ता लगा होता था. आप ये देखें, ये सीम्स लाइक दैट, इस तरह का कुछ. ये देख रहे हैं. अगर ओल्ड एज में बात करें वुडन व्हील बैरो, तो ओल्ड एरा में इस तरह का व्हील बैरो हुआ करता था, लाइक दिस. ये देख रहे हैं व्हील बैरो. तो अभी जिस व्हील बैरो की बात हो रही है वो इसी व्हील बैरो की बात हो रही है, लाइक दिस, है ना. ये आप देख रहे हैं दिस. ये पुराने दौर में इस तरह के व्हील बैरो यूज हुआ करते थे. दैट इज द व्हील बैरो. आजकल इसकी जो जदीद फॉर्म है वो ये ट्रॉली है.
जो हम आमतौर पर यूज करते हैं जो काम वगैरह के दौरान ना, तो ये उसकी जो है वो प्रीवियस दौर की जो शक्ल है वो ये कुछ इस तरह थी, व्हील बैरो। ठीक है, तो दे आर टॉकिंग अबाउट दिस व्हील बैरो, इसकी बात हो रही है। और हुआ क्या था जनाब, तो लेट्स सी क्या हुआ था, विल टॉक अबाउट। हुआ क्या था, वो कह रहा है कि तुम ये मत कहना मुझे कि तुमने उसे बेच दिया। कहता है वाकई मैंने उसे बेच दिया। वेल द फैक्ट इज, कहता है हकीकत ये है कि मैंने वाकई उसे बेच दिया। दैट वाज आई वाज obliged टू, मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ा। आई वाज obliged टू, मैं मजबूर था। यू सी the winter was very bad time for me and I really had no money at all to buy bread. सर्दी का मौसम मेरे लिए इंतहाई तकलीफदेह होता है, सख्त होता है, और मेरे पास पैसे नहीं थे खाने के लिए। सो आई फर्स्ट सोल्ड द सिल्वर बटन्स, मैंने अपने चांदी के बटन्स बेचे। एंड संडे कोट, और मैंने अपना कोट बेचा जो मेरी शादी का या मेरे जो है वो अच्छे दिनों का साथी था, जो मैं अच्छे यानी कि तकरीबात में पहन कर जाता था, वो कोट संडे कोट है ना, खास किस्म का जो लिबास होता है। एंड देन आई सोल्ड माय सिल्वर चेन, उसके बाद मैंने चांदी की चेन भी बेच दी। देन आई सोल्ड माय बिग पाइप, और आखिर में मैंने क्या बेचा, अपना बिग पाइप बेच दिया। एंड एट लास्ट सोल्ड माय व्हील बैरो। इसको जरा ध्यान में रखिएगा, उसने क्या क्या चीजें बेची। एक उसने व्हील बैरो बेचा, ठीक है जनाब। दूसरा उसने सिल्वर चेन बेची, उसके बाद बिग पाइप, ठीक है, बिग पाइप और संडे कोट और सिल्वर बटन्स। यानी उसके पास जब पैसे खत्म हो गए और सर्दी में उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा, तो उसने सबसे पहले अपनी चांदी के बटन बेचे, फिर अपना खूबसूरत लिबास बेचा, उसके बाद सिल्वर चेन बेची, उसके बाद बिग पाइप बेचा, और फाइनली व्हील बैरो। और कहता है बट आई एम गोइंग टू बाय देम ऑल बैक नाउ। कहता है अब मैं उसे खरीद लूंगा, दोबारा क्या कर लूंगा, दोबारा क्या कर लूंगा, खरीद लूंगा। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक लाइक द सेम? आप में से किसका ख्याल है कि वो इसे इन चीजों को दोबारा खरीद लेगा? जस्ट कमेंट। कौन कौन समझते हैं कि वो दोबारा इन चीजों को वापस खरीद लेगा? जस्ट कमेंट। जी जी, समीहा, ऐसे ही कुछ हुआ था क्या उसमें भी? यस अरीशा, क्या वो ये सारी चीजें दोबारा खरीद लेगा? व्हाट डू यू थिंक? खरीद लेगा, नेक्स्ट विंटर में काम आए। सबका क्या ख्याल है? एवरीवन शुड रेज योर हैंड। खरीद लेगा पक्का। देख लें, उसका मिलर जैसा दोस्त है वैसे। माहीन, यस प्लीज, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाथ तो नजर आ रहा है आपका, तस्वीर भी नजर आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। जी माहीन, जी सादिया, खरीद लेगा। सिद्रा, यस खरीद लेगा। और बाकी का क्या ख्याल है? शेयर योर व्यूज। जी सर खरीद लेगा। ओके, आयशा आमिर भी सोचती है, माहीन, सिद्रा, हफ्सा, रीशा, सबका मानना यह है कि वो खरीद लेगा। मिलर जैसे दोस्त के होते हुए खरीद लेगा। इफ्रा, आप क्यों अगेंस्ट में है? मेरा ख्याल है खरीद लेगा। नहीं खरीदेगा, उसका दोस्त उसके पास कुछ बचने ही जवेरिया, आपके दोस्त की तरह का दोस्त तो नहीं है उसके पास, सोच लें, है ना? ये दोस्त ही होते हैं जो काम खराब करते हैं। एक मिलर जैसे दोस्त के होते हुए ये वो काम कर सकता है? वो पहचान लेगा अपने दोस्त को, बिकॉज मिलर यू उसके फ्लावर ले लेगा। हाँ भाई इफ्रा, अच्छा फ्लावर भी ले लेगा मिलर? यार वो तो बड़ा पैसे वाला आदमी है, वो क्यों ले लेगा उसके फ्लावर? चलें जनाब, आगे देखते हैं क्या होता है। लेट्स मूव ऑन। हैंस सेड द मिलर, आई विल गिव यू माय व्हील बैरो। हैंस मिलर से कहता है, मिलर हैंस से कहता है, मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दे दूंगा। इट इज नॉट इन वेरी गुड रिपेयर indeed, one side is gone and the other there is something wrong with the wheel spokes. मिलर कहता है हैंस को, मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दे दूंगा। आई विल गिव यू माय व्हील बैरो, मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दे दूंगा। ये ज्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है, इसकी एक साइड पूरी टूट गई है और दूसरी जो इसका जो व्हील स्पोक है वो भी खराब हो चुका है। बट इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद मैं इसे तुम्हें दे दूंगा।
I know it is very generous of me. देखो ये मेरी सखावत है. Generous of me. देखो मैं I know ये मेरी सखावत है तुम्हारे लिए, मैं जानता हूँ. और and a great many people would think me extremely foolish for parting with it. और बहुत सारे लोग मुझे गलत समझेंगे, बेवकूफ समझेंगे. But I am not like the rest of the world. मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं हूँ. I think that generosity is the sense of friendship. बहुत ही अहम बात लिख लें. दोस्ती की जो रूह होती है, दोस्ती की जो क्या कहते हैं एसेंस होता है ना, वो क्या होता है? जेनरोसिटी, सखावत. तो एक दोस्त को सखी होना चाहिए. हजरत अली का कौल भी यही, दोस्त को सखी होना चाहिए. जेनरोसिटी इज द एसेंस ऑफ फ्रेंडशिप. एक दोस्त को सखी होना चाहिए कि दोस्त दिल मांगे तो दिल दे दे, जान मांगे तो जान दे दे, कान मांगे तो कान दे दे, है ना. तो ऐसा दोस्त होना चाहिए. जेनरोसिटी होनी चाहिए, यानी जिस चीज की आपको जरूरत है और आपका दोस्त आपसे मांगे तो आपको दे देना चाहिए. इस बात से अग्री करेंगे नहीं करेंगे? जेनरोसिटी इज द एसेंस ऑफ फ्रेंडशिप. हाँ ये बात भी सही है ऐसा. हाँ क्या कहते हैं? जेनरोसिटी इज द फ्रेंडशिप, एसेंस ऑफ फ्रेंडशिप. अग्री करेंगे? लेकिन देख लें, बोलने वाले से भी अग्री करेंगे. बड़ा देखो अभी तक इतना कुछ होने के बावजूद मिलर के पास 6 माइलेज काउज हैं, अ लार्ज फ्लॉक ऑफ शीप है और 100 सैक्स ऑफ फ्लोर है. इतना सब कुछ होने के बावजूद आज तक कुछ नहीं दिया और कह रहा है कि अब व्हील बैरो दे देगा. और व्हील बैरो की हालत क्या है? एक जगह से टूटा हुआ है और दूसरी जो उसका व्हील स्पोक है वो भी खराब है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि दे देगा. ही विल गिव इट. कहता है एंड बिसाइड्स, इसके अलावा आई हैव गॉट अ न्यू व्हील बैरो फॉर माय सेल्फ. मैंने नया व्हील बैरो खरीद लिया है. यू मे सेट योर माइंड एट ईज. अब तुम ज्यादा ना सोचो इसके बारे में, पुरसुकून रहो. आई विल गिव यू माय व्हील बैरो. मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दे दूंगा. चले, मेरा एक और सवाल आपसे, क्या समझते हैं मिलर हैंस को व्हील बैरो देगा या नहीं देगा? एहसान कर रहा है. देखो अफसा तुम्हारी तरह है बिल्कुल, है ना, एहसान कर रहा है. हाँ ये बात तो बिल्कुल अग्री है. द एसेंस ऑफ फ्रेंडशिप, जेनरोसिटी इज द एसेंस ऑफ फ्रेंडशिप. कि सखावत जो है वो दोस्ती की बुनियाद है, दोस्ती की रूह है. ये बिल्कुल अग्री करेंगे इस बात से, लेकिन बोलने वाले से अग्री नहीं करेंगे, क्योंकि लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. आपको क्या लगता है मिलर अपना वादा पूरा करेगा या नहीं? यस और नो में आंसर दीजिए प्लीज. क्विकली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. क्विकली आंसर दें, यस और नो में. मिलर अपना वादा पूरा करेगा, उसे व्हील बैरो दे देगा, हैंस को व्हील बैरो दे देगा या नहीं देगा? गो ऑन क्विकली आंसर मी. सैयदा तूबा जाफरी नो, इफरा खालिद नो, समीहा नो. यार बेकार का व्हील बैरो है, टूटा हुआ है, व्हील स्पोक खराब है, क्यों नहीं देगा? भाई ये तो कह रहा है कि जेनरोसिटी इज द एसेंस ऑफ फ्रेंडशिप. कंजूस है. दे देगा लेकिन हैंस को उसके व्हील बैरो के हालत देखकर वापस कर देगा. अच्छा हो सकता है बोल बोल के 10 हैंस से 100 चीजें ले लेगा और कहता रहेगा दे देगा. चलें जनाब आगे देखते हैं. लेट्स सी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती जा रही है और लेट्स सी क्या होता है. वेल रियली दैट इज जेनरस ऑफ यू, said little Hans, and his funny round face glowed all over with pleasure. I can easily put it in repair as I have a plank of wood in the house. कहता है कितने सखी हो तुम. हैंस कह रहा है मिलर को, तुम कितने सखी हो. उसका चेहरा खुशी से टिमटिमा जाता है और वो कहता है, हैंस कहता है कि मैं ना, मेरे पास लकड़ी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है. प्लैंक ऑफ वुड किसको कहते हैं? लकड़ी के टुकड़े को. कहता है मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, लकड़ी का तख्ता पड़ा हुआ है, मैं उससे क्या करूंगा, इस व्हील बैरो को रिपेयर कर लूंगा. अब मिलर जैसे ही सुनता है प्लैंक ऑफ वुड, सेड द मिलर. मैं कहता है अच्छा तुम्हारे पास एक लकड़ी का तख्ता मौजूद है. Oh, that is just what I want for the roof of my barn. यही तो मुझे चाहिए था. किस लिए चाहिए था? मुझे अपनी छत की मुरम्मत करनी थी. बान कहते हैं जखीरा करने वाली जो जगह होती है, अनाज को जखीरा किया जाता है, एक हट टाइप की जगह होती है, बान कहते हैं उसको. कहता है मैं ना, मेरे वो बान की छत टूट गई है. There is a very large hole in it. उसमें बहुत बड़ा सुराख हो गया है. And the corn will get damp. और मेरा जो अनाज है वो खराब हो जाएगा अगर मैंने उसे बंद नहीं किया.
How lucky you mentioned it. तुमने कितनी खुशकिस्मती है कि तुमने मुझे ये बता दिया. It is quite remarkable. बड़ा बड़ा अहम काम किया तुमने ये ना. How one good action always breeds other. ये भी one good action always breeds others. Another. ये भी बड़ा मशहूर कोटेशन है कि एक अच्छी इच्छाई दूसरी अच्छाई को जन्म देती है. एक नेकी दूसरी नेकी को जन्म देती है. अच्छा, अजान हो रही है, 1 मिनट की खामोशी. तो जनाब ये देखिएगा, वन गुड एक्शन ऑलवेज ब्रीड्स अनदर. कह रहे हैं कि एक नेकी दूसरी नेकी को जन्म देती है. आई हैव गिवन यू माय व्हील बैरो एंड नाउ यू आर गोइंग टू गिव मी योर प्लैंक. कहता है मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो देने वाला हूँ, तुम मुझे अपनी लकड़ी का वो तख्ता दे दो. ऑफ कोर्स द व्हील बैरो इज वर्थ फार मोर देन द प्लैंक. और यकीनन तुम्हें पता होगा कि व्हील बैरो की कीमत कई ज्यादा है इस लकड़ी के तख्ते से. बट ट्रू फ्रेंडशिप नेवर नोटिसेस थिंग्स लाइक दैट. और सच्ची दोस्ती में ऐसी चीजों को नोटिस नहीं किया जाता. Pray get it at once. जाओ जाओ जल्दी से वो लेकर आओ. I will set to work at my barn this very day. मुझे आज ही काम शुरू करना है barn में. Certainly, cried Little Hans, and he ran into the shed and dragged the plank out. वो तेजी के साथ भागता है और जाकर क्या करता है, प्लैंक ले आता है. अब वेट फॉर व्हाइल. हाँ, 1 मिनट दीजिएगा. आप मुझे बताइएगा स्क्रीन अगर सही आ रही हो. ठीक है, मैंने डेटा कनेक्शन को ऑफ करके इंटरनेट ऑन किया. ठीक है, देखिए अब स्क्रीन सही आ रही है. आर यू गेटिंग क्लियर स्क्रीन? इज द स्क्रीन क्लियर? अभी आपके पास स्क्रीन सही आ रही है सबके पास? कमेंट करें प्लीज चैट बॉक्स में. अभी भी सही नहीं आ रही? आप देखें. ओके ओके, चलें ठीक है. तो लेट्स सी अब क्या होता है जनाब. वो भाग कर जाता है और लकड़ी का वो प्लैंक टुकड़ा ले आता है. इट इज नॉट वेरी बिग प्लैंक सेड द मिलर. मिलर कहता है ये ज्यादा बड़ा टुकड़ा नहीं है. लुकिंग एट इट आई एम afraid that after I have mended my barn roof there won't be any left for you. कहता है मुझे खौफ है कि जब मैं अपनी छत रिपेयर कर लूंगा तो तुम्हारे लिए व्हील बैरो को रिपेयर करने के लिए कुछ बाकी नहीं बचेगा. बट ऑफ कोर्स दैट इज नॉट माय फॉल्ट. हाँ, यकीनन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है. And now, as I have given you my wheelbarrow, जबकि अब मैं तुम्हें अपना wheelbarrow देने वाला हूँ, I'm sure you would like to give me some flowers in return. तो मुझे यकीन है कि तुम मुझे कुछ flowers दोगे. Here's the basket, and mind you fill it quite full. ये लो बास्केट पकड़ो और बुरा मत मानना, इसे बिल्कुल फुल कर दो. आप देख रहे हैं मिलर के काम, देख रहे हैं आप लोग. मिलर ने क्या किया, पहले वो प्लैंक ऑफ वुड भी ले लिया जिससे वो व्हील बैरो रिपेयर करने वाला था और उसके बाद बास्केट दी और कहता है कि इसे भी क्या कर दो,
quite full, mind it, quite full. कहता है कि इसे भी क्या कर दो, quite full कर दो. देख रहे हैं आप, यानी बेचारा मिल हैंस जो है, अब जब ये बास्केट फिल करेगा तो सोचो कि उसके पास क्या बचेगा. और क्या कह रहा है, ऑफ कोर्स दैट इज नॉट माय फॉल्ट. यकीनन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है कि लकड़ी का तो जो तख्ता है उससे जब मैं बांध लूं, रिपेयर करूंगा तो कुछ बाकी नहीं बचेगा. कसूर तो सारा इसी का है. खैर, लिटिल हैंस कहता है क्वाइट फुल, सेड लिटिल हैंस रादर सॉफ्टली. बड़े उदास अंदाज में लिटिल हैंस कहता है क्वाइट फुल, पूरी भर दूं. For it was really a very big basket. और वो जानता था कि ये बहुत बड़ी बास्केट है. And he knew that if he filled it, he would have no flowers left for the market. और वो जानता था कि अगर वो बास्केट पूरी तरह भर देगा, he was very anxious to get his silver buttons back. वो जानता था कि अगर वो ये बास्केट पूरी भर देगा तो उसे फ्लावर्स मार्केट ले जाने के लिए बचेंगे ही नहीं. और वो बेचारा बड़ा बेचैन था अपने सिल्वर बटन वापस लेने के. Well, really, answered the miller, as I've given you my wheelbarrow, I don't think that is much to ask you for a few flowers. कहता है देखो, अब जबकि मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दे रहा हूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे कुछ ज्यादा की डिमांड कर रहा हूं. I may be wrong, हो सकता है मैं गलत हूं, but I should have thought that true friendship was quite free from selfishness of any kind. कहता है लेकिन मैंने सोचा था कि जो सच्ची दोस्ती होती है वो खुदगर्जी से पाक होती है, बेलॉस होती है. सच्ची दोस्ती बेलॉस होती है. अग्री करेंगे इस बात से, सच्ची दोस्ती बेलॉस होती है. और हैंस किस तरह का दोस्त लग रहा है आप लोगों को? हैंस किस तरह का दोस्त है? बेलॉस दोस्त है या नहीं है? True friendship was quite free from selfishness of any kind. My dear friend, my best friend, cried little Hans, you're welcome to all my flowers in my garden. I would much sooner have your good opinion that my silver buttons any day. And he ran and plucked all his pretty primroses and filled the miller basket. बेचारा कहता मेरे प्यारे दोस्त मिलर, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ. खुशामदीद, ये लो सारे फूल ले जाओ. और वो क्या करता है, सारे के सारे फूल तोड़कर उसकी बास्केट में भर देता है और कहता है मैं अपने सिल्वर बटन बाद में ले लूंगा. गुड बाय लिटिल हैंस, वो उसे गुड बाय करता है. He went up the hill with the plank on his shoulder and the big basket in his hand. और वो क्या करता है, वो बास्केट एक खांधे पर लटकाता है, एक शोल्डर पर लकड़ी का वो तख्ता रखता है और वहां से चला जाता है. गुड बाय said little Hans. He began to dig away quite merrily. वो बड़ा खुश होता है, दोबारा अपने हैंस जो है वो बेचारा दोबारा अपने बाग की सफाई में लग जाता है और वो जमीन को खोदना शुरू कर देता है. He was so pleased about the wheelbarrow. वो बहुत खुश था कि उसे wheelbarrow मिल जाए. The next day, he was nailing up some honeysuckle against the pots. वो कुछ जंगली पौधों की कटाई कर रहा था when he heard the miller's voice calling to him from the road. और उसने मिलर की आवाज सुनी जो उसे रोड पर से बुला रहा था. So he jumped off the ladder. वो सीढ़ियों से छलांग मारता है and ran down the garden. गार्डन से भागता है and look over the wall. दीवार से ऊपर झांक कर देखता है तो क्या देखता है, there was a miller with a large sack of flour on his back. देखता है कि मिलर खड़ा हुआ है और उसके कांधे पर एक बहुत बड़ा आटे का थैला है. Dear little Hans, said the miller, would you mind carrying this sack of flour for me to market? बुरा मत मानो, ये आटे का बोरा मार्केट ले जाओ और उसे बेच दो मेरे लिए. Oh, I'm so sorry, said Hans, but I'm really very busy today. I have got all my creepers to nail up and all my flowers to water and all my grass to roll. कह रहा है मुझे आज बहुत काम है, माजरत चाहता हूँ, मुझे बहुत सारे काम है, आज मेरा पूरा दिन बहुत बिजी गुजरने वाला है. टुडे, आज का पूरा दिन मेरा बहुत बिजी गुजरने वाला है. अच्छा सुने, ये मीटिंग बस एंड होने वाली है. आपने जैसे ये मीटिंग एंड हो फौरन आपने इसको रिकनेक्ट करना है इसी यूजर आईडी और पासवर्ड से ना, ठीक है. लास्ट मिनट है, यहां तक कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई प्रॉब्लम? बेवकूफ है बेचारा, मासूम है बेचारा. जस्टिस फॉर हैंस. यस, आवाज बुलंद करेंगे समियाम.